and leads to irreversible adverse ecological impact. Recently, humanity comes across with such challenges as climate change, air pollution, water supply deficit, deforestation. These problems have global nature. Everyone uses electric energy. Where does it come from? Nowadays, more than 80% of energy is produced from non-renewable sources. My activity on developing the ways of generation of electric energy for wind energy application is directed at finding solutions for some of the challenges and problems of the modern world. This way is admitted to be the safest and the most forward-looking in comparison with others. It can have a positive impact on the development of energetics in future. Let's consider the main principles of the technology now. Airflow. The rotation of the vertical wind farm is created by airflow, wind power. The aerodynamic shield prevents the adverse impact of the airflow on the rotation of the wind farm and eliminates the noise emission. Aerodynamic shield optimizes and directs air wind flows gently to the rotation circle, which increases the efficiency of the wind farm, the leverage effect. Performance doesn't depend on the direction of airflow. The concentration of airflow is created by streamlined structures built in the shape of a flower and forming a building, giving the entire structure of the installation a monolithic architectural form. Cost of one energy complex will amount to no more than 4-6% of the building cost. Here is a comparison of the better wind farm with wind farms of the classic type. Harmony with existing buildings and the environment. The possibility of placement directly in an urban environment. There is no energy loss. Remoteness from inhabited places. Infrastructure costs. Losses of 7% of energy when transmitting over distances. Safety. No noise. Low-speed design ensures noiselessness. There is no infrasound. The presence of intense noise up to 70 dB and infrasound, which has an adverse impact on the nervous system of living creatures. Power generation is possible at wind speeds of 4 meters per second. The possible height of the building is more than 190 meters. Ability to use gravity energy storage. The possibility of airflow concentration. The larger the area of the plates, the more energy. Airflow direction is carried out along a tangential line to the rotation circle of the blades. Workability doesn't depend on wind direction.
Speed of rotation is 47 revolutions per minute. Vibrations are excluded. Here is application possibilities. Energetics is ready to make a step into the future. That expression of the experts of the International Forum Technoprom gave the start to the discussion. There is an analogous building, Pearl River Tower, in China, but they provide themselves with 10% of energy. We do 200. It is a great discovery of yours. It needs developing. I think it is a forward-looking line of business. You will definitely get support of the experts who understand what it is and how it can be useful in urban construction, architecture, energy supply, in solving some global technical problems of the modern world. My congratulations to this. There is an open idea which is very well to make a wind stream coincide in the wind stream which flows around the building, which is constructed in a special way. Wherever the wind blows from the wind stream would get into the wind turbine. The rotation passes to the machines and the energy is generated. I am always excited to discuss interesting projects. Keep it up. That is my advice. Keep it up. This type of building should be a fairly common system, especially in Southeast Asia, in Dubai, and in the Moscow city area. So get ready to work energy source. Another thing is that everything needs to be implemented. The business is becoming very technological today. Now everyone has an opportunity to become a co-owner of the company. You can purchase company shares only on official
website. Zero Carbon Energetically Era starts with Data Project. हेलो, गुड इवनिंग। यस दोस्तों, वेलकम। आज की सेशन में मैं आपका होस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज की सेशन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बोलना चाहूँगा कि आज उन लोगों के लिए सबसे पहले धन्यवाद या बधाई के पात्र हैं जो कंटिन्यू इस बिजनेस के अंदर हम लोग 90 दिन जो हमारी इस बिजनेस को लीड करते तकरीबन हम लोग पार कर चुके हैं, और हमारे साथ में तकरीबन वो लोग हमारे इस बिजनेस के साथ में इस रेवोल्यूशन इंडस्ट्री के अंदर, क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के अंदर वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं धन्यवाद के पात्र हूँ, उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे साथी बिजनेस पार्टनर जो कंटिन्यू हमारे साथ में लगे हुए हैं। तो मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी कोर टीम की तरफ से, मिस्टर अश्वीर जी, मिस्टर मोहित और मिस्टर विपुल। कोर टीम के जो सदस्य और भी हमारे साथ में एसोसिएट होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी कोर टीम की तरफ से उन लोगों को बहुत बहुत वेलकम है जो आज की सेशन में पहली बार हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर, इस रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री के अंदर हमारे साथ में पहली बार बिजनेस के अंदर एसोसिएट हो चुके हैं। तो प्लीज रेस योर हैंड, अपने हाथ को ऊंचा करें ताकि हमें पता चले पहली बार हमारी इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए डेली के डेली जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट है वो कितने आए हुए हैं। तो प्लीज रेस योर हैंड, अपने हाथ को थोड़ी ऊंचा करें। ओके, हमारे साथ में विदाउट नेम 888 प्लीज अपनी नाम से आए। नीलेश बैल, ओके नीलेश बैल जी मोस्ट वेलकम। और जिसकी भी रीनेम यहाँ पर नाम नहीं है प्लीज अपनी यहाँ पर नाम डाल के आए। 4888 यस मोस्ट वेलकम। एंड अजीत कुमार जी आपको ही मोस्ट वेलकम है हमारी इस रेवोल्यूशन इंडस्ट्री के अंदर। और भी मेरे साथी जो आज बिजनेस के साथ में बैठे हुए हैं, तो अभी भी जिनको इनवाइट करना बाकी है आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है। तो आज के लिए और भी हमारे साथी आते रहेंगे। अभी तकरीबन हम लोग 75 पार्टिसिपेंट हम लोग अवेलेबल है। तो थैंक यू, मोस्ट वेलकम आज की सेशन के लिए। और जो भी लोग आते रहेंगे उनका मोस्ट वेलकम मेरी तरफ से और हमारी कोर टीम की तरफ से। अब हम आगे की बात करें स्टेप बाय स्टेप की, हम क्या क्या करने वाले हैं, हम थोड़ी उसके बारे में बात करेंगे। पिछले दिन हमारी जो एक शानदार मीटिंग रही, यदि आप लोगों ने देखा होगा काफी कुछ आपको समझ में भी आया होगा। मगर दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन इंडस्ट्री है। इसमें आप लोग की जो लाइफ के जो टर्निंग पॉइंट जो डेली के डेली हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बस हमारा एक ही उद्देश्य है, दुनिया के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर आपको नहीं दी जाती है। वहां पर उस कंपनी को बढ़ाने के लिए आपको एजुकेशन दी जाती है, और हम डेली के डेली आपके फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ताकि जिंदगी में यदि ये फाइनेंशियल एजुकेशन आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है तो एक ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के अंदर ना केवल आप अपना संपत्ति बना सकते हैं,
यहाँ पर फाइनेंशियल एजुकेशन वो डेली के डेली हम आपके साथ में शेयर करते हैं। यदि जिंदगी में उम्र मायने नहीं रखता है, किस उम्र में क्या देखा, कब आपने जिंदगी में कौन सी पैसा गवाया, कब कमाया, ये मायने नहीं रखता है। सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन यदि आपको मिल जाए और वहां आपको रास्ता सही दिशा में मिल जाए, तो दोस्तों आपकी कामयाबी की सीढ़ी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। फाइनेंशियल एजुकेशन दुनिया के अंदर एक एक ऐसा अजूबा है। यदि इस ज्ञान को सही मायने में आपने खुद ने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, प्लस अपने आने वाला फ्यूचर के लिए बच्चों को इस्तेमाल करवाया, तो दोस्तों उनके लाइफ के अंदर कभी भी फाइनेंशियल यानी कि पैसों की दिक्कत, पैसे कमाने की जो दिक्कत है, कभी पैदा नहीं होगी। वो डेली के डेली हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। मगर आज जिस टेक्नोलॉजी की बदौलत वे हमारे पास एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बदौलत ये सारी चीज आपको मिल रही है। एक फाइनेंशियल एजुकेशन आपको मिल रही है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है जो आने वाले टाइम के अंदर आपके भविष्य के अंदर बहुत बड़ा वंडरफुल होने जा रहा है। और साथ में आपकी पोर्टफोलियो का कि आपकी संपत्ति के अंदर बहुत बड़ा उजाला इस टेक्नोलॉजी के बदौलत आप बहुत जल्दी करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों मोस्ट वेलकम आज की सेशन के लिए। मैं आज मेरी जो स्पेशल कोर टीम के एक स्पेशल जो पार्टनर है, जो पूरी आज वीटर पावर ऑफ वीटर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि फ्यूचर के अंदर इस टेक्नोलॉजी की कितनी डिमांड है और इस डिमांड के साथ में आपकी पोर्टफोलियो के अंदर कितनी बड़ी संपत्ति अर्जित होगी। यदि आज की मीटिंग आपने सही तरीके से समझ लिया, तो इस टेक्नोलॉजी के बदौलत आपके जिंदगी के अंदर एक नई तरीके को उजाला दोस्तों आज यदि सही तरीके से समझ लिया, नए लोगों के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए भी है, और धीरे धीरे करके यदि समझ लिया आपने, तो आपकी जिंदगी के नई उछाल आने वाला है। तो इसी के साथ में मैं अपनी जो कोर टीम के जो हमारे स्पेशल जो पार्टनर है, जो बहुत ही लाजवाब इंफॉर्मेशन आपको देने वाला है, मैं इसको इनवाइट करूंगा। तो हम लोग सभी यहाँ रेस हैंड तो नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज उनको आज मोस्ट वेलकम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सारा यहाँ पर अवेलेबल है। यदि हमारे बीच में मिस्टर जसपाल सिंह जी यदि अवेलेबल है तो प्लीज रेज योर हैंड। जसपाल जी, जसपाल जी यदि मेरे बीच में अवेलेबल है तो प्लीज रेज योर हैंड। काफी लोग हैंड ऊंचा है यहाँ पे, और बाकी लोग अपनी हैंड को नीचा कर सकते हैं। और बाकी हमारे पास में लुधियाना जसपाल सिंह, ओके, लुधियाना जसपाल सिंह, ओके, थैंक यू। हमारे पास जसपाल सिंह जी अवेलेबल है, और मैं जसपाल जी को मेरी तरफ से अनम्यूट कर रहा हूं। जसपाल जी मेरी तरफ से आप अनम्यूट हैं, प्लीज। हेलो, यस, वेलकम, मोस्ट वेलकम जसपाल जी। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू पीपल सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जसपाल सिंह है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। तो आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। तो पीपल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको लाइव पे ले आइए। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके, ओके सर। हेलो सर, 10 मिनट सर, आपने कंटिन्यू रखे, लाइन पे लेके आ रहा हूँ। ओके सर। आज हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट ने वर्ल्ड की मेन 2 प्रॉब्लम और एक तीसरे प्रॉब्लम जो हमारी सबकी है, उसको ये खत्म करने जा रहा है।
सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नंबर 1 पे वो है पोल्यूशन, नंबर 2 पे है इलेक्ट्रिसिटी और तीसरे नंबर पे है मनी की प्रॉब्लम, जो कि आज पूरे वर्ल्ड की बन चुकी है। दोस्तों अभी जो हम प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं, जब बहुत से लोगों ने देखा है, बहुत से इसमें नए होंगे, तो पहले तो मैं उन सबका वेलकम करता हूं और उनको मेरा सादर प्रणाम है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो अभी आपके सामने वो प्रोजेक्ट पेश होने जा रहा है आपकी स्क्रीन पे, जिसने वर्ल्ड की 3 बड़ी प्रॉब्लम पे वो काम करने जा रहा है, उसको खत्म करने जा रहा है। जो मैंने अभी बताया, नंबर 1 पे है पोल्यूशन, नंबर 2 पे है इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 पे है मनी प्रॉब्लम। दोस्तों पोल्यूशन जो आजकल हम जानते हैं कि किसकी वजह से फैल रहा है, तो अभी आप इसको देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं इस टरबाइन की, विंड टरबाइन की। तो पोल्यूशन जो आज बन रहा है बड़े बड़े फैक्ट्रियां, कारखाने और ट्रैफिक के कारण ये पोल्यूशन बन रहा है। और ये पोल्यूशन मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम, आज देखा जाए तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ज़्यादातर अस्थमा के पेशेंट बनते जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्योर नहीं है। अगर दिल्ली का ये हालत देखी जाए हमारे इंडिया में, तो दिल्ली की आज अगर प्योर ऑक्सीजन की बात की जाए तो 15 से 20% रह गई है। ये तो नंबर 1 प्रॉब्लम होगी। नंबर 2 पे प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की। 2001 में यूएनओ ने एक रिसर्च किया था। उस रिसर्च में उसने बताया था कि वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है 2025 में ये डबल हो जाएगी और 2040 में ये 5 गुना डिमांड हो जाएगी। ये दूसरी प्रॉब्लम होगी। तीसरी प्रॉब्लम है मनी प्रॉब्लम, वो मैं लास्ट में उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। अभी जो आपने जो 2 प्रॉब्लम देखी है, सुनी है, कि पहले तो पोल्यूशन की, दूसरी है इलेक्ट्रिसिटी की। इन दोनों का प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, वो है हमारे विंड टरबाइन, जो कि पावर प्रोजेक्ट है। पहली डिमांड जो हमारी पोल्यूशन की है उसको भी ये क्लियर करेगा। दूसरी जो इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि यूएनओ ने एक रिसर्च किया था कि जब हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो डबल और 5 गुना होने जा रही है। उसका कारण क्या है कि हम जिन साधन से आज इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, जैसे कि थर्मल प्लांट है जो कोयले से चलती है, डीजल प्लांट है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद यूरेनियम प्लांट है जिससे कि पावर जनरेट होती है, और चौथे नंबर पे है जो हम डैम से लेते हैं जो पानी से बनता है। दोस्तों यूएनओ ने तो बोल दिया कि 2025 में ये डबल हो जाएगी, लेकिन अभी भी रिसेंटली एक न्यूज़ पेपर में पढ़ने को आई है कि जो हमारा कोयला है वो खत्म होने की कगार पे है। हमारे पंजाब में एक पेपर में मैंने पढ़ा था कि एक थर्मल प्लांट बंद होने जा रहा है क्योंकि पीछे से कोयला नहीं आ रहा है। नंबर 2 पे जो हमारा डीजल है वो भी खत्म होने की कगार पे, क्योंकि यह नेचुरल सोर्सेस सीमित होते हैं, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, इनको बनने के लिए काफी समय लग जाता है। और नंबर 3 पे जो हमारा जो पानी के डैम है, उनको उनसे बिजली को बनाने के लिए उनमें रख रखाव में काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है। उसका ग्रिड वगैरह लगाने पड़ते हैं, ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं उसको स्टोरेज करने के लिए। चौथा नंबर जो यूरेनियम से बनती है पावर, उससे रेडिएशन का बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। दोस्तों यूएनओ ने तो बोल दिया था कि 2025 में हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे अभी जो सप्लाई है वो कम हो रही है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण अभी बहुत बड़े बड़े कट लग रहे हैं। बहुत से एरिया में 2-2 दिन का पावर कट लग रहा है। अभी पेपर में हमारे एक न्यूज आई थी कि 4 दिन तक हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं चला सकते, और जो चलाएगा उसको बहुत बड़ा जुर्माना होगा, क्योंकि बरसात नहीं हो रही है, कोयला कम हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इन्वेंशन बनी है जो कि रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है,
ये इन्वेंशन पे बहुत देर से काम हो रहा था, जब से यूएनओ ने एक अपनी रिसर्च किया था, लेकिन 2018 में इस इन्वेंशन को बना दिया गया। जिन्होंने बनाया उनका नाम है डेनिस टाइगलन। ये रशिया के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे। 2018 में इन्होंने अपनी रिसर्च कंप्लीट की और रशियन साइंस ऑफ एकेडमी को इस इन्वेंशन को दे दिया। दोस्तों, जैसे कि एक रेस में 10 व्यक्ति भागते हैं, उनमें एक फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, तो ऐसी जब इन्होंने इन्वेंशन दी थी तो रशिया की टॉप 100 इन्वेंशन में इनको शामिल किया गया और उसमें से डेनिस टाइगलन फर्स्ट आए हैं, गोल्ड मेडल के साथ वो विनर रह चुके हैं। अभी ये इन्वेंशन को इन्होंने वर्ल्ड को देने जाने के लिए कि हमारी ये मैं पूरे संसार को देने जा रहा हूँ इस इन्वेंशन को, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम और पोल्यूशन की प्रॉब्लम दोनों को कंट्रोल किया जा सके। तो इसको देने से पहले इन्होंने इसके ऊपर काम ये करना स्टार्ट किया कि अगर इसको एक मोनोपोली बनाना चाहिए, मोनोपोली बना दिया जाए तो कैसे रहेगा, क्योंकि इसकी बहुत से नकलची आ जाएंगे, बहुत से इसको कॉपी करेंगे और इस इन्वेंशन का फायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने वर्ल्ड लेवल का एक अपना पेटेंट लिया, उसके बाद बहुत सी कंट्री में अपना इन्होंने पेटेंट फाइल किया। तो विपुल सर, आप उसको दिखा दोगे, यहाँ पे हमारे सर्टिफिकेट दिखते हैं पेटेंट के, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर दो ऊपर आप, तो आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको वो पेटेंट सर्टिफिकेट दिखाने जा रहा हूँ। आपने भी देखा होगा कि आप वेबसाइट पे अपनी आईडी एक्टिव करते हैं तो ये आ गया हमारा ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट। ये प्रोजेक्ट है जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है। दूसरा, अभी जिसके ऊपर हम पेटेंट पे बात कर रहे हैं वो अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। वो फ्लैग हैं 75 कंट्री के। 75 कंट्री में इन्होंने अपना पेटेंट फाइल किया है, जिनमें से रशिया, यूएस, साउथ अफ्रीका, कैंगो, दुबई और जापान ने इनको पेटेंट दे दिया। साथ में इनके साथ 15 साल का 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। सर, आप एक बार जापान पे क्लिक करेंगे। विपुल सर, जापान के फ्लैग पे आप क्लिक कीजिए, नीचे आ जाइए, नीचे। थोड़ा इधर आप और जी 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 जरा, हाँ जी, इसको दिखा। जी जी, हुआ नहीं क्लिक सर? यस, देखिए ये जापान का सर्टिफिकेट, पेटेंट सर्टिफिकेट खुलने जा रहा है। ये हमें लेटेस्ट पिछले मंथ में हमें ये पेटेंट मिला है। ये पेटेंट जापान एक टेक्नोलॉजी में अपने आप को एक नंबर 1 कंट्री कहलाता है। मोबाइल इंडस्ट्री में ले लीजिए, कारों की इंडस्ट्री में ले लीजिए, और भी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में ले लीजिए, ये अपने आप को नंबर 1 कहलाता है। लेकिन इस नंबर 1 कंट्री ने भी इस वीटर प्रोजेक्ट को पेटेंट दिया है और इनके साथ 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। 20 साल के अंदर पूरे जापान सिटी में ये प्रोजेक्ट लग जाएगा। अभी यहाँ तक तो होगी इस प्रोजेक्ट की बात। पेटेंट भी मिल चुका है, इन्होंने पेटेंट को फाइल भी किया है। नंबर 2 पे अभी ये बात आती है कि क्या अभी आप सोच रहे हैं आप इसमें हमें क्या करना है? क्या इस प्रोजेक्ट को हम खरीद कर डोर टू डोर बेचेंगे, शॉप टू शॉप बेचेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं दोस्तों। ये एक कंपनी बनने जा रही है, रजिस्टर्ड हो चुकी है, जो 2018 में रजिस्टर्ड हो चुकी है। आप इसका मेमोरेंडम देख सकते हैं जिसमें इन्होंने अपने पेटेंट सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ दिया है कि इन्होंने कितने से इसको स्टार्ट किया है, कितने से लागत लगाई है, तो इसको स्टार्ट कर दिया है। अब ये कंपनी बन चुकी है। अब ये आपको इनविटेशन दे रही है को ओनरशिप लेने का। इस कंपनी में आप एक सहयोगी मालिक के तौर पे यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत सी कंपनियों में हम काम करते हैं, ज़्यादातर इस प्लेटफॉर्म पे हम नेटवर्कर देखते हैं। जो नेटवर्कर एज ए नेटवर्कर काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे कंपनी की कंडीशन होने के साथ वो एक नौकर की तरह काम करते हैं। लेकिन जो एक पहला प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप मालिक होंगे
और आप यहाँ पे मालिक के रूप में आपको ये कंपनी आपको शेयर देगी, शेयर पैकेज देगी। तो विपुल सर हो सके तो शेयर पैकेज भी आप दिखा दीजिए। उन शेयर पैकेज लेने के साथ आपको इस कंपनी में एक मालिक के तौर पे एंट्री मिलेगी। अब शेयर लेने से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं? नंबर 1 पे आपको बेनिफिट होगा प्रॉफिटिंग शेयर। जैसे ये प्रोजेक्ट किसी भी कंट्री में, जैसे कि 2 कंट्री में लगने जा रहा है, दुबई में और जापान में, जहां पे भी ये प्रोजेक्ट लगेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो वहां से जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ परसेंटेज निकालेंगे और जो अर्ली इन्वेस्टर होंगे, जो इसके को ओनर होंगे, उनको बराबर मात्रा में डिवाइड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू शेयर। किसी के पास शेयर ज्यादा होंगे तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। नंबर 2 पे आपको मिलेगा डिविडेंड। दोस्तों, डिविडेंड एक ऐसा फल है जो कि बहुत मात्रा में आएगा, आपका तक नहीं, आपकी पीढ़ियों तक, 7, 8, 10 जितनी भी आप मर्जी पीढ़ियों को चुन ले, वो तब आपके उनके पास आता जाएगा। नंबर 3 पे है इसकी शेयर की वैल्यू जो स्टेज बाय स्टेज बढ़ती जा रही है। नंबर 4 पे जो इनकम है वो है एफिलिएट सिस्टम, जिसमें आप 40% तक कमा सकते हैं। अब नंबर 1 पे जो हम देखने जा रहे हैं वो है शेयरिंग प्रॉफिट, जो कि मैंने आपको बता दें। नंबर 2 पे जो डिविडेंड है, डिविडेंड की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत से ऐसी एग्जांपल हैं जिससे डिविडेंड को लेने वाले हजारों में लोग आज इंडिया में मौजूद हैं। ऐसी बहुत सी एग्जांपल है, जैसे एमआरएफ, विप्रो, टाटा, मारुति। इन कंपनियों ने, जैसे आज विटर कंपनी ने अपने प्री आईपीओ लॉन्च किया, इन्होंने भी लॉन्च किए थे। उनकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ अमेजोन की, क्योंकि अमेजोन में ही मेरे एक रिलेशन में मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने ये अमेजोन के शेयर लिए थे। आज से 15 साल पहले की बात है। उन्होंने जब अपना प्री आईपीओ लॉन्च किया था, 25 पैसे का उनका एक शेयर था, तो बहुत से लोगों ने ये बोला कि ये बाहर की कंपनी है, ये लोगों से पैसा इकट्ठा करेगी और भाग जाएगी। कुछ चंद लोगों ने उसमें एक रिस्क लिया कि इनका प्रोजेक्ट तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन अगर ये फेल हो गया तो हमारे कितने जाएंगे? 15 से 20 हजार रुपया। अगर ये पास हो गया तो जैसे ये बता रहे हैं तो करोड़ों में इनकम। तो उनमें से लुधियाना में चंद 2 लोगों ने ये रिस्क लिया था, और उस रिस्क में एक जो मेरे जानकार हैं, मेरी उम्र से बड़े हैं, मेरे अंकल हैं, तो उन्होंने बताया कि मैंने इसमें 20,000 रुपया लगाया था। अभी पेमेंट मेरे को याद नहीं है, लेकिन उनके पास 1 लाख शेयर है अब भी। तो वो 25 पैसे वाली चीज उन्होंने ली, तो उनको कुछ साल बाद लगने लगा यार मैंने पैसा लगा तो दिया, अभी डाउट भी आने लग गया। लेकिन फिर उन्होंने बोला देखा जाएगा, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि मैं ऐसे सोचा कि मोबाइल लेते हैं वो गिर जाता तब भी तो हम भूल जाते, एक और नया लेने जाते हैं। तो मैंने समझा कि 20,000 का एक मेरा मोबाइल गिर गया। लेकिन दोस्तों कुछ सालों के बाद, 5-7 सालों के बाद उन्होंने जब देखा वो 25 पैसे की जो चीज है वो बहुत ज्यादा उसका रेट बढ़ चुका था। जब उनको एक मेल आई डिविडेंड की, तो उस एक डिविडेंड का जो मूल्य था वो था 300 रुपए। अब उनके पास 1 लाख शेयर है। अब 300 को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मेरे हिसाब से ये 30 लाख के करीब बनता है। व्यक्ति ने लगाए 20,000 और आ रहा है उनको 1 साल का डिविडेंड, 1 साल में आता है जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो उनको 30 लाख एवरी ईयर आ रहा है। तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, 1 महीने 12 महीने तो उनको डिवाइड करोगे तो ये तकरीबन 2 लाख से भी ऊपर जा रही है इनकम। तो ऐसा ही सिस्टम जो है विटर भी आपको देने जा रहा है। अभी जो शेयर खरीद रहे हैं, कुछ छोटा पैकेज खरीद रहा है, कोई बड़ा पैकेज खरीद रहा है, आप जो भी मर्जी पैकेज खरीदिए, ये आपको उम्र भर, आपकी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा वृक्ष लगने जा रहा है कि आप
इसको जितने मर्जी फल कर खाते जाएं, ये कभी खत्म नहीं होगा। शर्त है कि इसको काटना नहीं है। मतलब अगर आप इन शेयर को नहीं बेचोगे, अगर इस शेयर को नहीं बेचोगे तो आपको डिविडेंड आता रहेगा, आता रहेगा, आता ही रहेगा, और शेयर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अगर आज अमेजोन की शेयर की एक शेयर की वैल्यू देखोगे तो 2 लाख से भी प्लस है। जो 25 पैसे का शेयर था आज 2 लाख से भी ऊपर जा चुका है, और अभी उसके ऊपर और जाने की संभावना है। तो सोचिए दोस्तों, जिस हम प्लेटफॉर्म पे हैं, ट्विटर पे प्लेटफॉर्म पे हैं, और मैंने अभी अमेजोन की एग्जांपल दी है, विप्रो की एग्जांपल दी है, एमआरएफ की एग्जांपल दी है, तो इनके तो कंप्यूटर एक नहीं, दो नहीं, काफी हैं, तब भी इनके शेयर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा तो वर्ल्ड में कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, क्योंकि हमने 2040 तक इसका पेटेंट ले चुके हैं, और 2040 के बाद हम फिर इसको रिन्यू करा लेंगे। हमारा कभी कॉम्पिटिटर कभी आएगा नहीं। तो आप इसका अमेजन करके देखो कि ये शेयर कहाँ तक जाएगा। अगर अमेजोन जैसी कंपनी का शेयर 2 लाख का हो सकता है, तो आप सिर्फ अमेजन करके देखो कि जो मोनोपली कंपनी हो, जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो, और इसका प्रोजेक्ट डिमांडेबल हो। आज जो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जो बताया है, वो हर एक गवर्नमेंट की एक मजबूरी बन जाएगी इसको लेने के लिए, इसको लगवाने के लिए। कारण क्योंकि जो हमारे नेचुरल सोर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, उनको बनने के लिए, बनाने के लिए बहुत समय लगेगा। और जो हमारी विटर है, जिसके नाम में इसका काम छुपा है, काम में इसका नाम छुपा है, विटर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल, जो कि हवा कभी खत्म नहीं होगी। कोयला खत्म हो सकता है, डीजल खत्म हो सकता है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, पानी भगवान ना करे, लेकिन बहुत से साइंटिस्टों ने बता दिया है कि पानी भी खत्म होने की कगार पे है। हम 4th लेयर में जा रहे हैं, 3 लेयर का हम पानी पी चुके हैं। तो हवा कभी खत्म हुई, जिस दिन हवा खत्म होगी उस दिन इंसान भी खत्म हो जाएगा, ये आप सबको पता है। और ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रही है। जिस कंट्री में, जिस एरिया में, जिस सिटी में, जिस गांव में ये लगेगा, उसको ये पोल्यूशन फ्री कर देगा। आने वाली आपकी जो जनरेशन होगी वो तंदुरुस्त पैदा होगी, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा वहाँ का एटमॉस्फेयर एल्कलाइन हो जाएगा। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी वो उसका पीएच लेवल जो डाउन हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसमें जो अभी एफिलिएट का सिस्टम है, जिसके ऊपर अगर हम देखें, बहुत से लोगों को अभी शेयर के बारे में नहीं पता, क्योंकि शेयर स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत से लोग नेगेटिव भी हैं, बहुत से पॉजिटिव भी हैं। बहुत से लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा गवाया है, और बहुत से लोग इसमें करोड़पति अरबपति बने हैं। जो अरबपति बने हैं उन्होंने सीख कर बने हैं, जो गवाते हैं वो इसमें बिना सीखे काम करते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 3 रूल है। एक रूल है जो कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए, नॉलेज, पहले इसके बारे में नॉलेज लो। दूसरे नंबर पे ग्रीडिंग, इसमें कभी लालच मत दिखाओ। और तीसरा जो इसका जो नियम है, हेलो 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 विपुल सर, हाँ जी, आ रही आवाज? मेरे को लग रहा था। ओके, ठीक है सर, ठीक सर। तो इसमें जो एफिलिएट सिस्टम है, बहुत से लोगों को ये एफिलिएट सिस्टम ऐसा एक प्लेटफॉर्म देने जा रहा है जिसमें आप करोड़ों शेयर बना सकते हो। क्योंकि अगर एक शेयर की वैल्यू हम अमेजोन की तरह सोचे, अगर 2025, 26, 27, 2030 तक भी मान के चले कि 2 लाख के करीब हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो बड़ा क्यों ना हो जाए। बड़ा करना है, ज़्यादा शेयर खरीदना, पोर्टफोलियो को बड़ा करना तो ज़्यादा शेयर। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आ रही है कि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि हम करोड़ शेयर नहीं खरीद पा रहे हैं। अभी कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के अनुसार बहुत से लोगों के पास पैसे की कमी है, लेकिन कंपनी ने आपके पास एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे क्रिएट करके रख दिया है कि आप 1 करोड़ भी शेयर खरीद सकते हो छोटी सी इन्वेस्टमेंट से।
अगर देखा जाए तो आप $40 से भी, $40 लगाकर भी 1 करोड़ शेयर बना सकते हो। तो वो क्या है, वो कंपनी ने बनाया है एफिलिएट सिस्टम, जो कि ना स्कीम है ना स्कैम है। अभी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाती है, बहुत से लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि ये वो कोई स्पॉन्जी स्कीम तो नहीं है। इसके ऊपर भी हम कभी डिटेल में बोलेंगे, स्टॉक मार्केट पे भी डिटेल में बोलेंगे और एफिलिएट सिस्टम के ऊपर भी बोलेंगे। अगर आज का एफिलिएट का सिस्टम देखूं तो मैं मौका, अगर विपुल सर अगर मौका दिया जाए किसी नए व्यक्ति को जो एफिलिएट पे बोल सकता है, तो आप उनको इनवाइट कीजिए, तो नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, थैंक यू जसपाल जी, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जसपाल जी की प्रेजेंटेशन वाकई में लाजवाब, फैंटास्टिक। जो इंफॉर्मेशन आपको दी वीटर ऑफ पावर की प्रेजेंटेशन, ऑलिफर आपको वो चीज बताई गई है कि आने वाला टाइम के अंदर वीटर पावर दुनिया के अंदर एक ऐसी पावर स्टेशन के रूप में दुनिया के अंदर बेमिसाल, इसकी डिमांड क्यों बढ़ेगी। दोस्तों, डिमांड के बारे में आप लोग कंटिन्यू जानते हैं, राइट। जिस तरीके से हम आपको डेली इंफॉर्मेशन देते हैं, दुनिया के अंदर पैटेंट टेक्नोलॉजी वीटर जो टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर पैटेंट टेक्नोलॉजी है, अभी पिछले कुछ ही दिनों की बात है, मैं यहां से 2-3 दिन पहले देख रहा था कि दुनिया के अंदर अभी आज के दिन में इंडिया के अंदर जो लेटेस्ट न्यूज है, अमर उजाला की, मैंने एक पेपर में कटिंग करी है, उसमें देखा मैंने कि अभी जो फिलहाल में मार्केट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आ रही है, क्या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या हम लोगों ने नोट किया है, मगर टाटा मोटर वालों ने इन चीजों को बहुत पहले से इंडिकेट कर दिया है। जब उन्होंने यहां से कुछ 1 साल पहले गाड़ी को इंडिकेट मार्केट में किया तो 2000 व्हीकल निकाला, वो टोटल के टोटल सप्लाई हो गई। अभी इस साल जो गाड़ी की मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 6200 यानी कि 6200 गाड़ी उनका सेल आउट हो चुका है। मार्केट के अंदर डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने ये देखा, जब डीजल और पेट्रोल की गाड़ी का दोनों का फ्रीक्वेंसी, दोनों का रेशियो देखा उसने, तो डिमांड सबसे ज्यादा उनकी इलेक्ट्रिसिटी की आ रही है। क्यों? क्योंकि एक डीजल की जो गाड़ी है पर किलोमीटर की जो स्पेंडिंग है वो करीब 5 रुपए पर किलोमीटर की स्पेंडिंग करीब आता है। और वो चीजें यदि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं, उसमें 1 रुपए करीब प्रति किलोमीटर की करीब इसमें स्पेंडिंग आता है। दोस्तों, ये दोनों का रेशियो यदि कीमत में भी बराबर हो जाए, और ये चीज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कितनी कम रुपए के अंदर हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, ये चीजें बहुत इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला टाइम की जो इलेक्ट्रिक जो गाड़ी आ रही है, तो डेफिनेटली कि हम आने वाले टाइम में डीजल पेट्रोल के ऊपर डिपेंड नहीं होने वाले हैं, हम डिपेंड होने वाले किसके ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। दोस्तों, जिस चीज की मैं बात करना चाह रहा हूं, यदि उस मुद्दे को आप समझ गए तो आपको आज के बिजनेस की सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझ में आ जाएगी। वो चीज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। बार बार बोल रहा हूं, दुनिया में दोस्तों हमारे पास स्रोत अब तक रहा क्या है? जिस चीज को बनाने के लिए हम लोग इतने सालों से इतनी चीज का डिमांड करते रहे, कभी हम पोल्यूशन खत्म करने वाला कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास में फिलहाल में नहीं है। और साथ में ना खत्म होने वाली चीज हवा से बिजली पैदा होने की सिस्टम, वो भी 1 मेगावाट से 300 मेगावाट बनाने की क्षमता यदि किसी टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाए, दोस्तों लाजवाब वो होने जा रहा है। और मैं जिस गाड़ी की बात बता रहा हूं, अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर 120 सिटी के अंदर ये पावर स्टेशन जो लार्ज सिस्टम के अंदर चार्जिंग वाला सिस्टम लगाया गया है, मगर इनका टारगेट है आने वाला टाइम के अंदर जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती जा रही है, हिंदुस्तान की हर सिटी के अंदर इनकी 2-2, 5-5 करके इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर स्टेशन बनाया जाएगा। तो मुझे बताइए दोस्तों, जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अभी हम उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर में कैसे पूर्ति करेंगे? तो इस टेक्नोलॉजी की डिमांड होगी या नहीं होगी, आप अपने आप से सवाल करके देख लेना। दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी की जितनी ज्यादा डिमांड होगी फ्यूचर के अंदर, आज जितने लोग यहाँ पर बैठ करके सिस्टम को समझ पा रहे हैं, ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, ये एक सोचने वाली बात, एक बिजनेस से रिलेटेड बात बता रहा हूं मैं आपको। दोस्तों, दुनिया के अंदर डिमांड और सप्लाई की सबसे बड़ा गेम होता है, बिजनेस की सबसे बड़ी संपत्ति बनाने का गेम डिमांड और सप्लाई का रहता है। तो आने वाले टाइम के अंदर जो सबसे डिमांडेबल जो प्रोजेक्ट रहेगा वो पावर स्टेशन के रूप में जो इलेक्ट्रिसिटी वीटर टेक्नोलॉजी जो बना करके दे रही है, जो दुनिया के अंदर हर जगह पर आपको फास्ट पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी बनाने का बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो हमारे पास में अभी अवेलेबल है।
तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी हमारे पास में जो अवेलेबल है, वो है बीटर पावर टेक्नोलॉजी, जिसके लिए शानदार मैं आप लोगों से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इसकी सेशन के लिए। अब हमारी बारी आती है कोर टीम की आगे की इंफॉर्मेशन के लिए। हमारे पास अभी 15 मिनट का टाइम और है, जिसके बारे में स्पेशल मैं इन्वाइट करूंगा हमारे कोर टीम की जो स्पेशल गेस्ट है मिस्टर मोहित जी। मोहित जी को मैं स्पेशल आज के दिन में इन्वाइट करूंगा कि ताकि आगे के इंफॉर्मेशन सर वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। यस मोहित जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे प्लीज? मोहित जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो ऑल राइट सर, ऑल राइट, थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच। सर अपना स्क्रीन ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और सिर्फ 1 सेकंड दे रहा बस मुझे। ऑल राइट, फैंटास्टिक सर। तो ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है हम सब लोगों ने देखा, समझा, ओके। और साथ में एक अच्छी चीज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा, राइट, जो कि हमारे ही कोर टीम मेंबर से हमें पता चला। ऑलरेडी बेसिकली वो आता तो हमारे पास में बहुत बार आया था, राइट, लेकिन कभी उस तरीके से हमने उसे एनालिसिस नहीं किया। ऑल राइट, तो वो चीज क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑल राइट, फैंटास्टिक, जस्ट अ मिनट। ओके, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, राइट। दिस इज द फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट ऑफ द वीटर पावर प्रोजेक्ट। ओके, मीन्स ये वो रिपोर्ट है, राइट। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर। कंपनी और आपके हमारे बीच में ये एक डॉक्यूमेंट है, राइट, जिससे कि कंपनी अपने आप को कितना लायल है, राइट, कितनी लायल है अपने इन्वेस्टर्स के साथ में, अपने अर्ली इन्वेस्टर्स के साथ में, जिनको एक को ओनर कहते हैं, पार्टनर बोलते हैं, राइट। और साथ में अच्छी चीज क्या है, आप इसमें एक ये पूरा का पूरा एक डेटा दे रखा है। मीन्स कि कंपनी ने, राइट, जो आप और हम लोग यहाँ पर एक जो फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स को ओन करने के लिए, उसका सबको पता है कि उसका 40% जो पार्ट है वो एफिलिएट प्रोग्राम में जाता है, राइट, और बाकी का वजह से 60% जो पार्ट है, ओके, वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जाता है। अब कंपनी उस 60% को किस किस तरीके से यूज कर रही है उस फंड को, वो यहाँ पर दिखा रखा है। बेसिकली इसमें दिखाया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेबसाइट डेवलपमेंट, मटेरियल, करंट एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट, राइट, फिर सीएनसी, मिलिंग, लेजर कटिंग। ये इतनी बारीक चीजें हैं, जितना भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ये लोग पैसे को लगा रहे हैं, राइट, हर एक का ब्यौरा, हर एक का हिसाब किताब आपके साथ कंपनी शेयर कर रही है। रेंट ऑफ स्पेस, राइट, पार्टिसिपेशन फी, वेटेक्स एग्जीबिशन एट द दुबई एक्सपो 2020, यहाँ पर उसकी वैल्यू भी लिखी है कि कितने कितने लाख उधर रूबल की फॉर्मेट में कितने लाख रूबल उधर इन्वेस्ट हो रहा है। देन फिर टैक्सेस, पेटेंटिंग, पे आउट्स बाय एडवर्टाइजिंग लिंक्स, ओके, देन रिमेनिंग बैलेंस, यहाँ तक कि जो 60% का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, जो उनके पास बचा हुआ फंड है, वो तक भी इन्होंने दिखाया हुआ है। और टोटल रिसिप्ट में आप देख सकते हैं, और टोटल बैलेंस टेकिंग इनटू द अकाउंट द प्रीवियस मंथ, पिछले मंथ तक वो ये अमाउंट था, ओके। जिसने इसको डेवलप किया है दैट इज मिस्टर एसएन सिडोर, और जिसने इसको चेक किया है दैट इज मिस्टर डेनिस चैगलिन, ओके। अब मैं बताना चाहूंगा एक बहुत अच्छी बात, वो ये कि कल का सेशन जिन्होंने अटेंड किया था, राइट, वो ये कि कंपनी जो है ना, वहां पर आप ये कह सकते हो, आनंद परदेसी जी की बात मैं रिपीट करना चाहूंगा यहाँ पर, वो भी हमारे बीच में है, राइट। और अगर वो इस बात को और अगर क्लियरिटी देना चाहें, इस पे और क्लियर वे में इसको अगर डिस्कस करना चाहे हमारे साथ में, तो वो हैंड रेज करके प्लीज आ सकते हैं आनंद परदेसी जी, ओके। तो वो बात क्या थी
यहाँ पे ओवरऑल वन मैन आर्मी शो हम लोग बोल सकते हैं। अब ये वन मैन आर्मी है कौन? दैट इज मिस्टर डेनिस टैगलिन। डेनिस टैगलिन, ही इज द ऑथर, ही इज द इन्वेंटर ऑफ वीटर पावर प्रोजेक्ट, राइट। इसके अंदर कहीं पर भी स्टेप 1 से लेकर लास्ट स्टेप तक आप देखेंगे तो जैसे हम लोग प्रमोशन करवाते हैं, मार्केटिंग के लिए अलग अलग कंपनीज हायर करते हैं, राइट, और फंड को कलेक्ट करने के लिए कुछ एक अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मनी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कंपनी ने बिल्कुल भी नहीं किया। मींस यहाँ पर जो भी है टेक्नोलॉजी खुद बना रहे हैं, पेटेंट भी खुद करा रहे हैं, राइट, और डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट का डेमोस्ट्रेशन भी खुद ही दे रहे हैं जा जाके, राइट। और साथ में और जो इसका खुद का कि हमें इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कैसे करना है, ऐसा क्या एफिलिएट प्रोग्राम होना चाहिए, वो भी ये लोग खुद ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो पेमेंट गेटवे एपीआई है, ठीक है, और जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो भी ये लोग खुद ही कर रहे हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। मींस जो कोर वैल्यूज है कंपनी की वो कंपनी ने अपने पास रखी हैं, राइट। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये है कि आने वाले भविष्य के अंदर कंपनी बहुत अच्छे से स्टैंड करेगी, बहुत अच्छे से खड़ी होगी, क्योंकि कोई आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। डिस्प्यूट कब क्रिएट होता है? जब कोई भी पार्टनरशिप अपने आप को हक करता है, मतलब एज ए प्रूव करता है कि मैं भी इसके अंदर पार्टनर हूँ। इसके अंदर इन द सेंस जो कहते हैं कि जैसे किसी को एक पार्ट दिया, वो अपने आप को क्लेम करते कि सर हमने आपका इतना बड़ा काम किया, आप हमें इसमें इतना पार्टनरशिप दो। तो उस तरीके वाला ऐसा कोई भी डिस्प्यूट फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल ओनली होल सोल जो ओनर है वो मिस्टर डेनिस टैगलिन है। फिर उसके बाद में डेमिस्टी क्रोशनगर है, दैट इज डायरेक्टर, मैक्स पर्वो हैं, राइट। इसके बाद में फिर ऐसे बहुत सारे इनके मैनेजमेंट के लोग हैं, लेकिन ओवरऑल जो पूरा कमांड है वो मिस्टर डेनिस टैगलिन के हाथ में है। ओके, आनंद परदेसी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो और अगर इसके ऊपर थोड़ा सा क्लियरिटी अगर आप देना चाहें तो आप अपना दे सकते हैं। मैं आपके माइक को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर। वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? सर जी सर। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। अभी इसको थोड़ा मैं ब्रीफ बताना चाहूंगा कि डेनिस टैगलिन, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है कि कोई भी पार्टनरशिप जब बनता है तो वो टूटने के लिए ही बनता है। तो डेनिस टैगलिन ये जो अभी यंगस्टर है, ये इनोवेटर है, ये काफी मतलब दूरदृष्टि वाले इनोवेटर है। इनको मालूम है आगे चल के क्या होने वाला है। तो अगर समझो अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट को तो कोई बैंक जल्दी फाइनेंस नहीं करेगा, और बैंक कोई भी साइंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। अगर जॉइंट वेंचर अगर किसी से लेते हैं, कोई बड़ी आसामी या बिलियनर लोगों को इसमें अगर लेते हैं, तो होता है क्या है, बिलियनर वहां पे वन टाइम पैसा इन्वेस्टमेंट करके अपना पूरा प्रॉफिट खाने के लिए, मतलब कैसा है कि शेयर्स ज्यादा मांग लेगा, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मांग लेगा, क्योंकि उसने वन टाइम पेमेंट इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पे क्या किया कंपनी ने, हमको ज्वाइंट वेंचर बनाया है, एक मास पब्लिक को ज्वाइंट वेंचर बनाया है। लेकिन ज्वाइंट वेंचर बनाते वक्त पावर किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि हर एक का इन्वेस्टमेंट अलग अलग डिफरेंट टाइप का होगा। किसी का $100 का, किसी का $500, किसी का $1000, किसी का $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पूरा हक, यानी एक कंपनी का ओनर, और हम लोग यहाँ पे को ओनर बने। तो जब भी कोई डिसीजन होता है, जब भी कोई प्रॉफिट होता है, तो कंपनी वहां पे वोटिंग के जरिए हमको प्रॉफिट शेयरिंग करवाती है। और वोटिंग ये मास में होता है। वोटिंग का हक किसको होता है? जो ऑलरेडी मास पब्लिक होता है उनको वोटिंग का होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो कॉमन को ओनर बने हैं, इनको ये हक होगा कि कंपनी के जो भी प्रॉफिट में हमको वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा। अगर कंपनी बोलता है कि मेरे को यहाँ पे समझो इतना एक XYZ अमाउंट का प्रॉफिट मिला है, तो इसमें से कुछ अमाउंट हमको 50% का यहाँ पे प्रॉफिट देना है, 60% देना है, 70% देना है, या 100% प्रॉफिट बांटना है। ये वोटिंग होता है ओनर के साथ में। अगर 100% प्रॉफिट बांटता है तो पूरा के पूरा पैसा वहां पे प्रॉफिट उस महीने का जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी सिखाया जाता है कि अगर 100% का प्रॉफिट आज आप बांटोगे तो नेक्स्ट मंथ प्रॉफिट मालूम नहीं कितना आएगा। इसलिए अगर 50% प्रॉफिट हम लोग आज बांटेंगे तो वही 50% का प्रॉफिट जो बैलेंस बचा हुआ है वो हम अगले महीने के लिए कंपाउंडिंग कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो प्रॉफिट है वो नेक्स्ट मंथ से कंपाउंडिंग होता जाएगा। धीरे धीरे प्रॉफिट कंपाउंडिंग होता है तो हमारा जो डिविडेंड मिलने वाला है वो भी कंपाउंडिंग फंड में, कंपाउंडिंग अमाउंट में हमको मिलता जाएगा। ये एक थिंकिंग होता है। और इसमें क्या होता है कि ये डिसीजन लेने का पूरा अधिकार हमको और डेनिस टैगलिन को होता है। इसमें हम लोग जो मास पब्लिक है, ये हमने इसको कंपनी के प्रोसेस में हमने देखा है। और जो ज्वाइंट वेंचर आएगा वो फिनिशिंग के बाद में आ सकते हैं, फिनिशिंग प्रोडक्ट देखने के बाद। तो ये बहुत अच्छा हमको एक बेनिफिट मिला है कि आज
हम बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट को कोई गवर्नमेंट साइन किया है क्या, कोई गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया है क्या, इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट पैसा लगाने वाला है, तो गवर्नमेंट पैसा लगाने के पहले हम लोग इस प्रोजेक्ट के ओनर बनने का हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला है। थोड़ा एक मैं ब्रीफ, जैसा भी जो नए लोग आए हैं और पुराने, और 1-2 मिनट बोल सकता हूँ मैं, 2-5 मिनट अगर आपकी इज्जत हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कंटिन्यू कीजिए। अगर कुछ शेयर भी करना है तो प्लीज वो भी बताइए। हाँ, मैं थोड़ा एक कैलकुलेशन करके, देखो हमारे माइंड में कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह बैठता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर एफडी में हम लोग 8-9 साल का वेट करने को हमको सिखाया गया है, तो ये अगर हम लोग हमको किसी ने बताया कि स्टॉक में पैसा लगा दो, तो हम लोग 2 साल में उसका रिटर्न मांगना चालू करते हैं। तो मैं थोड़ा एक इलेबोरेशन करना चाहूंगा कि हाँ, समझो आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं सर। अभी कंटिन्यू मैं सर। स्क्रीन में डायरेक्ट ऐसे बोला, अगर कोई यहाँ बैठा है तो अपना पेन और पेपर ले लो, तो मैं 5 मिनट के अंदर आपको पूरा ग्राफिक समझाऊंगा क्या होता है। देखो आज की डेट में हम लोग 2021 में बैठे हैं, तो ये थोड़ा 20 साल हम लोग पीछे जाए हुए, 20 साल पीछे यानी 2001 में अगर समझो आपने 55,000 रुपया अगर कहीं बैंक में इन्वेस्टमेंट किया होता, या एफडी अलग किया होता, या इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो मेरे ख्याल से अगर 5 साल अपन पकड़ लेते, 5 साल में डबल हो रहा है, एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं। वैसे तो 5 साल में कोई अमाउंट डबल नहीं होता है बैंक में, ना एफडी में, ना इंश्योरेंस में होता है। हम लोग पकड़ते 5 साल में, तो यहाँ पे हमको 20 साल में 4 स्लैब है 5-5 साल के, तो हर 5 साल में अगर कंपाउंडिंग में पकड़ते हम लोग, पहले 5 साल में हमको मिल रहा है 55,000 का 1 लाख ही पकड़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट 5 साल में 2 लाख, नेक्स्ट 5 साल में 4 लाख, नेक्स्ट 5 साल में 8 लाख रुपए। यानी अगर 2001 में अगर हमने पैसा लगाया होता 55,000 रुपए, तो आज हमारे पास 8 लाख रुपए करीबन होता था। यानी अमाउंट कितना बढ़ गया है, करीबन नियर अबाउट 10 टाइम्स हमारा अमाउंट, 10 टाइम्स प्लस अमाउंट हमारा बढ़ गया है। तो अगर मैं एक एग्जांपल आपको लूंगा, एक आइशर कंपनी का अगर शेयर आप लेते हैं, आइशर कंपनी आप जानते हैं एक रॉयल इनफील्ड जो मोटर बाइक बनाती है, वो आइशर कंपनी का शेयर 2001 में 55,000 में वो गाड़ी होती थी और उसका शेयर होता था 17.5 रुपया। यानी 2001 में देखो 55,000 में आइशर की मोटर बाइक बिकती थी और उसका शेयर की वैल्यू थी 17.5 रुपया। 2 दोस्त थे, वो 2 दोस्त वहां पे गए, एक ने गाड़ी परचेस कर लिया 55,000 की, और दूसरे दोस्त ने क्या कर लिया, 55,000 गाड़ी परचेस करने के बदले उसने 55,000 के शेयर परचेस कर लिया आइशर के। तो उसको 17.5 के हिसाब से उसको 3,200 शेयर उसको मिल गए। अभी उसने क्या किया, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी थी, उसने एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा, और 20 साल के बाद सिनारियो क्या था देखो, अभी हम 2021 में, आज 2021 में नई गाड़ी अगर हमको रॉयल इनफील्ड की आइशर की लेनी है, तो करीबन 2-2.5 लाख से लेके 3-3.5 लाख तक गाड़ी की वैल्यू है। यानी 20 साल में गाड़ी का वैल्यू कितना बढ़ा है, 55,000 से गाड़ी का वैल्यू बढ़ा है 3 लाख। लेकिन आप थोड़ा गौर करेंगे कि शेयर वैल्यू जो 20 साल में कितना बढ़ा है। अगर 17.5 रुपया शेयर था 2001 में और गाड़ी की प्राइस थी 55,000 रुपया, तो गाड़ी की प्राइस आज 3 लाख रुपया है और शेयर की वैल्यू है आज 2700 रुपया। आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो गूगल पे, 2,700 रुपया पर शेयर की कॉस्ट है। तो एक दोस्त ने अगर 55,000 की उस टाइम बाइक ली होती 20 साल पहले, तो उसकी वो बाइक की कीमत आज क्या होती थी, 0 वैल्यू। 20 साल में गाड़ी 0 वैल्यू जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो गाड़ी पूरी भंगार में निकल जाती है, स्क्रैप में निकल जाती है 20 साल में। और उसी दूसरे दोस्त ने 55,000 में अगर शेयर परचेस किए 3,200, तो उसकी वैल्यू आज होती है 88 लाख रुपया, 88 लाख रुपीज उसकी वैल्यू है। क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बंदे ने कंपनी का कस्टमर बनने का सोचा और दूसरे बंदे ने क्या सोचा कि मैं कंपनी का ओनर बन जाऊं। तो डिफरेंस ये है कि आज तक हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम किसी कंपनी या किसी टेक्नोलॉजी में हम यूजर बन रहे हैं। हमको वो माइंड हटाना है और हमको एक अलग टाइप से माइंड, क्योंकि यूजर, कोई भी यूजर किसी भी कंपनी को खड़ा करता है, तो यूजर में इतनी पावर है, तो यूजर को ये कंपनी ने, ट्विटर ने पावर दिया है कि यूजर को ओनर बनने का चांस दिया है। तो आप थोड़ा माइंड ये सोच लो कि आज हमारा जो $100, हम $200, आज की डेट में आप $70 का भी पैकेज लेते हो, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट $700 का होता है। $700 में आपको कितना शेयर मिलता है, नियर अबाउट 8-8.5 लाख का शेयर आपको मिलता है। तो उस 8-8.5 लाख का वैल्यू देखो, आने वाले 2030 में पकड़ लो, हम लोग यहाँ से 8 साल पकड़ लेते हैं, 9 साल पकड़ लेते हैं। अगर कंपनी बोलती है $1 अगर रेट होता है 2025 में, उसका नेक्स्ट 5 साल में पकड़ता हूँ, सिर्फ कंपाउंडिंग डबल पकड़ता हूँ, $2 ही होता है। अगर $2 भी होता है 2030 में, तो हमारे पास आज 8 लाख शेयर है, 8 लाख शेयर मल्टीप्लाइड $2 मतलब $16 लाख का हमारा वैल्यू होता है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का कैपिटल वैल्यू होगा। लेकिन उसके बीच में हमको आने वाले 2030 से लेकर 2030 में
हमको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो डिविडेंड के रूप में मिलने वाला है। यानी हमारा क्या हुआ, हमारा ऑलरेडी हमारा जो एसेट है वो वैसे ग्रो होते जा रहा है, और वो एसेट जैसा ग्रो हो रहा है उसके एसेट के ग्रो पे हमको डिविडेंड भी बढ़ के मिल रहा है, यानी कैश फ्लो इनकम मिल रहा है। तो ये जो ये इनटेंजिबल एसेट है, आज के डेट में अगर हम लोग करोड़ रुपए की जमीन भी लेंगे तो करोड़ रुपए की जमीन के लिए हमको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, वहां पे फैमिली रखना पड़ेगा, वहां पे एक वॉचमैन रखना पड़ेगा, बहुत सारा चीजें। ये वो क्योंकि वो टेंजिबल एसेट है, ये इनटेंजिबल एसेट है। ये इनटेंजिबल एसेट मतलब जैसे आपका इंश्योरेंस कॉपी होता है, हम लोग हमारे कपड़ में रखते हैं, फाइल में रखते हैं, वो भी एक इंटेंजिबल एसेट है। वैसा ये शेयर सर्टिफिकेट है, ये हमारा इंटेंजिबल एसेट है। मैंने परसों कल या परसों ही मैंने ग्रुप पे पूरा शेयर सर्टिफिकेट अलग अलग कंपनी के भेजा था, वो भी इंटेंजिबल एसेट्स है। वैसा ही जब हमारा इक्विटी जब हमारा लिस्टेड हो जाएगा तो हमको भी सेम इसी तरह से इक्विटी बॉन्ड हमको लिख के आएगा कि हमने ये नंबर से लेके ये नंबर तक हमारा शेयर अलॉट हुआ है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर परचेस कर रहे हैं, लेकिन हमको जब कंपनी लिस्टेड हो जाएगी उस टाइम पे $312 बिलियन में से कंपनी जो हमको 312 बिलियन शेयर में से कंपनी हमको एक अमाउंट एक नंबर देंगी कि अभी किसी ने समझो 1 लाख शेयर लिया रहेगा तो उसको 1 से लेके 1 लाख तक उसका अमाउंट उसको शेयर मिलता है नंबर। अगर उसके बाद में किसी ने शेयर लिया तो उसको 1,01,000 से लेके तो उसने 20,000 शेयर लिया होगा तो 1,01,000 से लेके 1,20,000 का नंबर का शेयर उसको उसके नाम पे रहेगा। तो जैसे हम लोग जमीन लेते हैं तो जमीन का हमको एक ब्लूप्रिंट बनाती है कि ये यहाँ से यहाँ तक आपकी जमीन है, वैसे ही हमारा शेयर आपने आज 55,000 लिया है, 1 लाख लिया, 2 लाख लिया, 10 लाख लिया, तो 10 लाख उस टाइम पे वो क्या होगा, इक्विटी बॉन्ड में कन्वर्ट होकर हमको नंबर ऑफ शेयर कहां से कहां तक फ्रॉम टू फ्रॉम ऐसा हमको नंबर मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा। अभी हम लोग प्री आईपीओ स्टेज में है, तो प्री आईपीओ स्टेज में बिलो ₹1 से हमको शेयर मिल रहा है। ये हमारी बहुत ही अच्छी खुशकिस्मती है। हमारी खुशकिस्मती बोलने अच्छा हमारे बच्चों की खुशकिस्मती है कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है उनका फ्यूचर बढ़ाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए। तो अगर बोलते हैं ना कि हम लोग को अगर हमारे घर में हमारा फोटो 100 साल तक देखना है, 100 साल तक हमको हमारे बच्चे लोग को हमको पूछना है, तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाना दो। आज के डेट में 50,000 रुपया हम लोग सोच लो कि आप 50,000 की हमने कहीं पे भी एक इन्वेस्टमेंट कर दी है। ये सोच लो कि 10 आज जो भी आप पैसा लगा रहे हो ये सोच के लगा दो कि जो भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे 5 साल वो पैसा को आपको याद नहीं आना चाहिए। तो 5 साल वो पैसे से इन्वेस्टमेंट से आपके कोई गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। तो अगर वो ध्यान आपको वहां से हट गया तो ही आप यहाँ पे बेफिक्र होके अच्छा खासा पैसा ग्रोथ कर सकते हो। तो इतना मुझे बोलना था आज शेयरिंग में। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा अपग्रेड कर लीजिए आपके माइंड को सबको। एक इन्वेस्टिंग एक आर्ट है, इन्वेस्टमेंट कोई आपके बॉदर नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है किसको आपको इन्वेस्टमेंट करो, आपको लालच नहीं दे रहा है कि इतना पैसा लगाओ। इन्वेस्टिंग एक आर्ट होता है, वो आर्ट की तरह इसको लो, आर्ट की तरह इसको समझो, बहुत मजा आएगा। क्योंकि आप जब इन्वेस्टिंग करते हो, आप अपने फैमिली से डिस्कस करते हो ना, तो आपका फैमिली में एक अलग तरह से आपका नजर चेंज होता है कि ये कुछ तो भी इनके माइंड में कुछ अलग चल रहा है। पहले क्या होता था, हम लोग को इतने 4 आदमी को लेके आया, 10 आदमी को लेके इतना पैसा मिला कि हम ये लेंगे वो लेंगे गाड़ी लेंगे। यहाँ पे हम लोग हमारा आज के डेट में आप जब भी प्लान किसको देते हो, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके पहले हम लोग क्या बोलते थे कि सामने लोग पूछते थे क्या आप पैसा कमाना चाहते हो, तो वो बोलता है कि आपने पहले कमाया क्या। ठीक है ना। आज के डेट में हम लोग इसके आगे बोलना चालू करेंगे कि आप पैसा बनाना चाहते हो। वो वहां से पूछना, वहां से पूछेगा आपने बनाया क्या, तो हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट हमने बनाया है। क्योंकि पैसा कमाना और पैसा बनाना बहुत डिफरेंस है। पैसे से पैसा बनाना, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो ये ध्यान में रखो, इसके आगे जो भी काम करना है, जो भी करना है, तो अपने जनरेशन को सामने रख के काम करो। क्योंकि आने वाले जनरेशन को आप क्या देने वाले, फ्यूचर लाइफ फाइनेंशियल फ्रीडम दोगे, जिसके कारण कभी भी उनको देखो। जब विटर प्रोजेक्ट खड़ा हो जाएगा ना, तो हम लोग बोलेंगे, जैसे अब बुर्ज खलीफा, अभी बुर्ज खलीफा खड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग वहां पे जाके बुर्ज खलीफा टिकट निकालते हैं और 125 माले पे जाके हम लोग एज ए कस्टमर बैठते हैं। कल अगर विटर का पावर प्रोजेक्ट खड़ा हो जाएगा, फिर भी लोग उसको जाके विजिट करेंगे, लोग पैसा देंगे, देखेंगे उसको, लेकिन हमारे बच्चे बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट के हम लोग को ओनर है, ये प्रोजेक्ट के हमारे डैडी ने, हमारे मम्मी ने ये प्रोजेक्ट में हमारा पैसा लगाया, हमारा भविष्य यहाँ पे सिक्योर कर दिया। तो ये सोचो अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, यहाँ पे विटर प्रोजेक्ट में बेधड़क से काम करो। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू आनंद प्रदेश सर। राइट, और इसमें नो डाउट मुझे कोई शक नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, राइट, कि हम लोग जिसके साथ में आज कनेक्ट हैं वो भविष्य की एक बहुत बड़ा एसेट और पोर्टफोलियो के रूप में
हमारे बच्चों के सामने आएगा, राइट? और क्यों? क्योंकि हम लोग जिस एसेट को अभी बना रहे हैं, एक्चुअल में उसको जो यूज करेंगे, राइट, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन करेगी। हम लोग तो सिर्फ अपने डिविडेंड में ही खुश होंगे, क्योंकि हम लोगों को डिविडेंड भी इतना सफिशिएंट आ रहा होगा कि हम लोगों के सारे एक्सपेंसेस वगैरह भी सब लोग यहाँ से हम लोग बियर कर पाएंगे। ओके, और आनंद परदेसी जी, बहुत अच्छा, राइट? आपने बेसिकली एक जो बोलते हैं ना, बहुत ही आसान सी भाषा में आपने आज ये बताया कि भैया एसेट और लायबिलिटी क्या होती है, राइट? और इससे अच्छा एग्जांपल मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा एग्जांपल एसेट और लायबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो अभी हमारे साथ में 2-3 लोग हैं, राइट? उनसे एक बार हम लोग 1 to 1 कर लेते हैं। ओके, आज के सेशन में प्लीज जिसको भी मैं अभी अनम्यूट करूंगा, उनके जो भी क्वेश्चन है वो प्लीज वो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो सिस्टम से रिलेटेड हो। ओके, आज की मीटिंग के सेशन से रिलेटेड हो, सिस्टम से रिलेटेड हो, डैशबोर्ड से रिलेटेड हो, बैक ऑफिस से रिलेटेड हो, तो डेफिनेटली मैं सबका मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा। इसके साथ ही अगर आपके कोई सजेशंस हो, कोई व्यूज हो, तो आप अपना शेयर कर सकते हैं। मिस्टर अजीत कुमार जी, अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, तो आप अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे पहले, राइट सर? आपके कहाँ से हैं, आपका नाम और आपका जो अपलाइन है, जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया सिस्टम में। अजीत जी, मेरी तरफ से आप अनम्यूट हैं, आप अपने माइक को अनम्यूट करके आ सकते हैं। देन मिस्टर हसन गेने जी, आप मेरी तरफ से अनम्यूट हैं, आप अपने माइक को अनम्यूट करके आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम सर। हाँ सर, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, राम राम जी, बोलिए सर। जी, मैं J&K से हूँ, कश्मीर से। तो वेरी गुड सर। मेरे एक दोस्त ने मुझे लिंक भेजा तो मैंने अभी ज्वाइन किया। फैंटास्टिक सर। तो मुझे ये बताइए इसका मिनिमम पैकेज क्या है? $100 सर, प्लीज। ये सर, ये जो बेसिक वाली जो चीजें है ना, प्लीज हसन जी, मैं बोलना चाहूंगा आपको, जो भी ये बेसिक चीजें हैं वो प्लीज आप अपने अपलाइन से ही कंसर्न करो सर। जी, मुझे बताइए। अगर आपके बैक ऑफिस पे कोई भी टेक्निकल्स हैं, राइट, या फिर कुछ भी और है, तो प्लीज आप 1 by 1 लगभग 7 दिन आप कंटिन्यूअसली मीटिंग अटेंड करो, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा सर। मुझे सिर्फ 3 क्वेश्चन, बस एक ही सेकंड में खत्म हो जाएगा मेरे क्वेश्चन। हाँ, बोलिए सर। हाँ जी। बाकी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, वो 5 साल लग या 10 साल, वो अलग बात है। ठीक है, उसके लिए हम रेडी रहते हैं हमेशा। मुझे बताइए इसका ये शेयर का वैल्यू क्या है, बताया था आपने अभी शेयर का वैल्यू सर 13 to 14 पैसा है। 14 पैसा। और $100 में मुझे कितने शेयर मिलेंगे? 55,635 शेयर। ये बहुत ही बेसिक है सर, बहुत ही बेसिक है, प्लीज। जी, और मुझे बताइए कि मैं INR में डिपॉजिट कर सकता हूँ या मुझे डॉलर में करना है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं सर इधर। ओके, ये जो आपने बताया ना डिविडेंड, मतलब ये कैसे आ रहे हैं मंथली, ये किस तरह से आ रहे हैं? नहीं, डिविडेंड अभी नहीं आएगा सर। डिविडेंड अभी जो शेयर है, शेयर आपका अभी लिस्टेड होगा सर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अभी इसका लिस्टिंग होगा, राइट? लिस्टिंग होने के बाद में आपका डिविडेंड आना चालू होगा सर। ओके, ये लिस्टेड कब होने वाला है? फिर भी कोई 2024 और 25। ओके, मतलब 25 के बाद ही डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा? हाँ जी सर, ऐसा। ठीक है, ओके सर, इतना ही मेरा ये था। थैंक यू। बाकी अच्छा ये मुझे बताइए, अगर कोई बड़ा पैकेज या इसमें कोई है, ये अगर मैं अपनी टीम को जोड़ूं, बाइनरी वगैरह, उसमें कुछ आता है? हाँ, उसमें 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है सर, वो एफिलिएट प्रोग्राम है, राइट? और शायद अगर मीटिंग में आप होंगे तो इन्होंने बताया भी था एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में, राइट? एक्चुअली मैंने सिर्फ लिंक ज्वाइन किया, मुझे किसी ने बताया नहीं। मेरा एक दोस्त है, तो मैं उसका भी बाद में उसके साथ बात करूंगा। तो हाँ, प्लीज आप उसको, क्योंकि ये सर बहुत ही बेसिक है। इस चीज को अगर ना डिस्कस करें तो ही अच्छा है। तो वो आप अपने ओके सर, मैं उसी से बात करूंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, विनोद कुमार रोशन लाल भल्ला जी, मोस्ट वेलकम सर। आपका माइक अनम्यूट है मेरी तरफ से। Yes, sir. Good evening, sir. I'm very much pleased, you see, with this project. One of my friend, his referral is Mr. Sharad. 2 days back only, he had just talked this to me regarding this project, you see, of Waiter. And I liked it. And actually, I had listed my wife's name under this. And I'm also going to very shortly join this to be a member of this Waiter.
because you see, it's a growth project. It's a growth project. Without this, man cannot survive. Even the moment I'm talking to you, this is electricity generation that is converted into mechanical engineering, or it is or due to this thing. What is the voice energy that is converted potential energy into kinetic energy? So this is a very good project, and it will be everlasting. It's a project. I'm very much fascinated by this program, and you gentlemen, people, with due respect, I'm very much impressed by the way you have explained the project. But I'm at the initial stage. Just to speak honestly, sir, I will not got the detail of this project, you see, but I'll go through my this thing upline, you see, and consult him. And very shortly, I'm also going to be a member of this, the great, you see, project that is later. Yes. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Okay, Vinod ji. Thank you. All right, then Mr. Lalit ji, आप मेरी तरफ से अनम्यूट है सर, आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपने विचार रख सकते हैं सर, मिस्टर ललित जी। एंड मिस्टर संतोष पांडा जी, आप अनम्यूट है मेरी साइड से, राइट सर। एंड मिस्टर कोर मन सर, नमस्कार सर, संतोष पांडा सर। या नमस्कार सर, वेलकम सर। सर प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है सर। इसमें जो पेमेंट गेटवे है, आप अभी बोले कि डेबिट कार्ड में हो जाएगा, वो पेमेंट में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अभी ये कैसे होगा? इसी का एक सेशन लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा सर। हाँ, कैसे पेमेंट सर, वो हम लोगों का जो सेशन होता है वो एवरी मंडे होता है सर। सर इसमें थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चार्जेस लग जाता, $40 $70 में। तो ये सर एक सेशन तो मंडे को होगा तो सही रहेगा सर। ठीक है, डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ऑलराइट, देन मिस्टर कौर, प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करके आ सकते हैं सर। Hello sir, this is Guru Pratap Singh. Actually, this photo and this name is of my daughter's because my daughter is all the time she's attending the online classes. That's why I just use the same ID for the photo conversation. Okay sir, not an issue. सर मैं ये मतलब कि मुझे ये जो थे मेरे जो साला साहब थे, उन्होंने मुझे ये बताया था कि इसके बारे में, तो मैं काफी देर से इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मतलब वीटर के बारे में। तो एक्चुअली आई एम द नेचर लवर पर्सन, सो एज दिस, बिकॉज माय थिंकिंग ऐसी है कि मतलब कि मैं जो नेचर के साथ में बहुत अटैच्ड हूँ। तो इस प्रोजेक्ट में मतलब मुझे मतलब कि एक अलग सी सोच दी है, जिसने मतलब कि ये एक मतलब कि एक तो क्लीन एयर को, जो आजकल जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, मतलब कि एक तो एयर को क्लीनिंग कर रहा है सिस्टम, दूसरा क्या है हमको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो आई रियली लाइक दिस प्रोजेक्ट एक्चुअली। So honestly, I'm saying thank you so much for your all the details you are sharing with us. Thank you so much. And I just want to know that as in the Novosibirsk in Russia, there is a sample project is already showing in the site of the right sir. That is a prototype of the project, sir. Yeah, I got you. But I just want to know that something like identically that type of that type of sample is installed in India somewhere or something, or not yet? No sir, not yet sir. Right, the prototype maybe in the next year the prototype of the project will be in India, right sir? And in the next year the first pilot project of the VITR will be in the Dubai, sir. Okay, right. I know about the Dubai, but I just want to know that in India, because if there is something, because if there is even in Dubai, because I'm working in Abu Dhabi right now. Very good sir. Yeah, so anytime I can go over there and I can see, but I just, because I'm mechanical engineer, so according to mechanical engineer, I know that little bit technology about that, how it's fantastic. So I also suggest you that kindly participate in the Dubai Expo in the October, sir. Right? Yeah, sir. I already missed because of COVID-19. It's supposed to be done in 2020. October. Right. Yeah. This year October on the 6th of October, right, sir? On yes. 6th of October, you can participate and understand the whole project while the demonstration presented by the Mr. Dennis Tagrin or the colleagues of the Dennis Tagrin, right, sir? Yes, exactly, sir.
Okay. I try Okay, my sir. best. But what will be the next session in 2021? I think they already delayed the Expo 2020 Expo, so it will be in 2021. I don't know about the next date. If you suggest me the next date, then I try my best to join It's the a join the. it's 6th of October, sir. 6th of October this year, 2021. Okay. I got you, sir. Thank you. Okay. Thank you Okay, so sir. much for the sharing this all knowledge and information. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir. Best regard. Take care. Best regard from my side, sir. Okay, sir. Thank you. Mr. H. Narayan, Mr. H. Narayan from भुवनेश्वर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर. मिस्टर एच नारायण, ओके, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं. मिस्टर ललित सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो मेरी तरफ से आज का सेशन कंप्लीट है. राइट, ओवरऑल हम लोग हेलो 50 मिनट. हेलो राइट सर, वेलकम सर. हाँ सर, ललित बोल रहा था सर. हाँ जी सर. हाँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से ललित छाजड़ बोल रहा हूँ सर. नमस्कार. नमस्कार सर. सर कल के इस मीटिंग के बारे में कुछ सवाल थे मेरे साथ. सवाल कल कल की लास्ट मीटिंग के बारे में सवाल थे जी. मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी, जैसे कि जी. हाँ, आप एक काम कीजिएगा सर. देखो, आप एक काम कीजिएगा, आप अपने एक बार जो आपके अपलाइन है ना सर, उनसे एक बार प्लीज मेरा नंबर ले लीजिएगा. राइट सर, तो हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में बात कर पाएंगे सर. किसका? आपका नंबर? हाँ, मेरा नंबर ले लीजिएगा अपने अपलाइन से सर. राइट, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम लोग आधा घंटा 1 घंटा हम लोग कंप्लीट करेंगे सर. ओके जी. प्लीज थोड़ा प्लीज सा सर, मुझे मतलब ये क्योंकि कल की मीटिंग के अंदर ना मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि कल की मीटिंग में क्वेश्चन का ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं था सर. कल एक जनरल सेशन था. टॉपिक नहीं था, जनरल बात थी. लेकिन उसी जनरल बात में एक जो लास्ट में जो बात हुई थी उसके बारे में मुझे पूछना था. हाँ, पूछिए सर. जैसे कल जो बोले कि जो आपके मतलब $100 का शेयर ले रहे हैं और उसको फिर वो जो मतलब किस्त में ले रहा है, किस्त में नहीं देना है, ये जो बात बोली. अच्छा, ठीक है. चलो, तो ये मैं उस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई ये आपकी कोर मीटिंग ने जो निर्णय लिया है, तो वो क्या कंपनी का निर्णय है या आपका अपना निर्णय? सर, हमारा कोर टीम का है सर. वो हमारा इंडिविजुअल कोर टीम का है. कंपनी का सिस्टम कोर टीम के हिसाब से चलता है या कंपनी के सिस्टम के हिसाब से कोर टीम चलती है, मुझे पूछना था. क्योंकि आपने डायरेक्टली इस टाइप से बोला, जब भाई आज बिजनेस खड़ा करने के लिए हर कोई जो भी व्यक्ति नया आ रहा है, और अगर कंपनी ने सिस्टम दिया हुआ है कि अगर वो किस्त में ले सकता है, तो उसको फिर हम अगर जाकर के आज बोले कि किस्त में नहीं देना और सीधा डायरेक्ट बोलना है कि पूरा का पूरा उसको लेना है वन टाइम पेमेंट करके, तो ये बात उचित नहीं लगती सर. फिर ऐसा लगता है कि या तो फिर कहीं तो भी जाकर के कोर टीम अपने हिसाब से बिजनेस कर रही है, कंपनी के हिसाब से नहीं चल रहा. देखो सर, हमें प्रोडक्टिविटी निकालनी है, सिंपल सा. ललित जी, मैं अब आपको बताना चाहूंगा. राइट सर, हम लोगों का अभी हो गया सर 90 डेज. हाँ, ठीक है सर, हम लोगों को हो गया अभी 90 डेज. राइट, और मैं सर 58-54 में मेरी जितनी भी टीम है वो 58-54 में नहीं करना चाहती सर. राइट, आपको करना है, आप कीजिए सर. ओके सर. नहीं वो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मीटिंग में इस टाइप से बोलने से क्या होता है सर? डायरेक्ट मीटिंग में इस टाइप से बोलने से कितनी बड़ी निगेटिविटी जाती है किसी हम नए बंदे को अगर ज्वाइन किया है और उसको. ललित जी प्लीज, मुझे पता था कि आप ऐसे ही बोलोगे. राइट, मुझे नहीं पता आपके अपलाइन कौन है, किस कंसर्न में हो, कौन से ग्रुप में हो सर. राइट, मैंने आपको जानबूझकर आपका माइक म्यूट किया है. ओके सर, आपको करना है, आप जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से करो. जो भी डिस्कशन करना है आप अपने अपलाइन के साथ में डिस्कशन करो. राइट, और ये जो मीटिंग्स हैं, जिस मीटिंग को आप अटेंड कर रहे हो सर, ये कोर टीम के हिसाब से चलेंगी सर. राइट, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर कंपनी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है. राइट, और ये किसी भी क्रॉस लाइन के सजेशन से नहीं चलेगी सर मीटिंग. So thank you very much, sir. Lalit ji. Mr. H. Narayan, sir, most welcome. Mr. Narayan, sir, most welcome. Okay. Mr. Kaur, sir, मैं एक बार फिर से आपको अनम्यूट करना चाहूंगा. Thank you, sir. Thank you for unmute again. Thank you, sir. I just want to know that, sir, ये जो मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो वीटर का प्रोजेक्ट है, इसमें मतलब मैंने जब साइट पे गया था तो इसमें इंडिया का फ्लैग भी शो कर रहा है, और इंडिया के फ्लैग के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो मतलब कि पूरे का पूरा डिटेल्स जो है मतलब कि हिंदी में और पूछता है इंग्लिश में, इंडियन इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश मतलब पूछता है.
तो उसके बाद जो सारा डिटेल जो है उसमें जो मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो चेक किया था, उसमें ये बता रहा था कि मतलब ये प्रोजेक्ट जो है इसमें इंडिया का भी शेयर है। तो ये कि मैं पूछ रहा था कि ये मतलब कि जो शेयर है ये मतलब कि डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट ने अलाउ किया होगा, गवर्नमेंट ने उसमें मतलब कि जो भागीदारी की होगी इसमें। हाँ, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो इंडिया का उधर जो फ्लैग दिखता है ना सर, वो जी जी उधर जब उस पर क्लिक करते हैं ना, तो वहाँ पे इंडिया का पेटेंट के लिए फाइल किया हुआ वो एक रिसिप्ट है सर। ओके सर। ओके जी जी देन उसके बाद में इस साल के अंदर लास्ट तक इधर से इंडिया से पेटेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां पर अभी जो पेटेंट फाइलिंग की जो रिसिप्ट है उसकी जगह पर आपको पेटेंट सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा सर। ओके ओके सर। और जी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है सर। ओके 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 ठीक 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 है सर। लेकिन हाँ, ऐसी बहुत सारी एनजीओज हैं राइट, जिनसे हमारी बात होती रहती है, जो कि नेचर लवर है। ओके सर। तो वो लोग इस प्रोजेक्ट को इतने अच्छे से देख रहे हैं, तो कहते हैं कि हम लोग अपनी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल मिनिस्ट्री है या इस तरीके से राइट, एनवायरमेंट, बहुत सारे होते हैं ना सर डिपार्टमेंट्स अंदर जी 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 बिल्कुल राइट, तो उनके साथ वो डिस्कस करने के लिए एग्री है राइट। हो सकता है जब कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेके आएगी राइट, जब तक उसको यहाँ से कोई भी कॉर्पोरेट डील नहीं मिलेगी तब तक कंपनी इधर प्रोजेक्ट लेके आएगी नहीं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ही अपनी गवर्नमेंट के थ्रू इस प्रोजेक्ट को अप्रोच कराया जाए राइट, तो डेफिनेटली हम लोग इस प्रोजेक्ट को आने वाले 1 से 2 साल के अंदर इंडिया के अंदर लेके आ सकते हैं। जो भी मेरा डिस्कशन होता है सर यहाँ पर, जो भी टॉप लेवल्स गवर्नमेंट के अंदर जो भी मिनिस्टर्स हैं या आप कह लीजिए वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं राइट, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी सर बहुत सारे हमारे साथ में एसोसिएट है सर, तो कहीं ना कहीं सर वो बातें तो पता लगेंगी सर आगे, है ना सर। सही सही सही। नहीं वो तो मतलब कि जैसे इंडिया में आएगा प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली वो एक्वायर करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट इसको, क्योंकि जिसमें अगर फायदा होगा इसमें मतलब पब्लिक का भी गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, प्लस मतलब कि जो इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी है उसमें जो अगर मतलब कि डेवलपमेंट होगा तो श्योर उसमें जो मतलब कि एक्वायर करने की कोशिश करेगी उसको इंडियन गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी तो मतलब मैं मतलब ये जानना चाहता था कि इसमें जो इसका गवर्नमेंट का जो कुछ शेयरिंग है कि नहीं, बस। अभी नहीं है सर, अभी कोई पार्टिसिपेशन थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके ठीक ठीक ओके ओके मिस्टर ऑलराइट, बेसिकली आज टाइम तो सर ज्यादा हो चुका है। मिस्टर चांद रतन साहू जी, मोस्ट वेलकम सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। एंड मिस्टर संतोष सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं राइट सर। इसके बाद में प्लीज कोई भी इन लोगों के बाद में कोई भी हैंड रेज ना करे राइट सर। प्लीज मिस्टर साहू सर। सर नमस्कार। संतोष सर एक मिनट प्लीज रुक जाना राइट जी। चांद रतन सर। हाँ मोहित सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर अभी जो क्वेश्चन किए ललित छाजेड़ जी, हाँ जी हाँ जी, हाँ तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कोर कमेटी का ये डिसीजन है, जैसे सपोज मान के चलिए कई गरीब आदमी है और वो $100 से कुछ इंस्टॉलमेंट ओपन है साहू सर, वो ओपन है राइट सर, आप कर सकते हो। हमने उसमें क्या बोला, हम लोगों ने $10 का जो इंस्टॉलमेंट वाला पैकेज है उसको डिसकंटिन्यू किया है राइट। हमने क्या है, हमारी कोर टीम ने डिसाइड किया राइट सर। अब अगर किसी को आप करना है, बेसिकली होता क्या था सर कि जब भी हम किसी को भी सिस्टम के अंदर लेके आते थे तो हम लोग उसको प्रमोट करते थे सर राइट। मिस्टर साहू सर हैज बीन हेलो सर। हाँ सर हेलो। हाँ तो बेसिकली हम लोग उसको प्रमोशन करते थे राइट। अभी कोई भी अगर $10 से आता है सिस्टम के अंदर तो हम लोग उसको प्रमोट नहीं करेंगे सर। नहीं आप सही बोल रहे हो सर, ये प्रॉब्लम आ रहा है, नो प्रॉब्लम। मैं ललित जी को भी बताया है ना, बट वो बोले कि सर ये डायरेक्ट कंपनी का डिसीजन है या कोर कमेटी का, है ना। मैंने बताया ना सर, कोर कमेटी का, कोर टीम वीटर इंडिया का सर। जी ठीक है। तो मैं उसको बोला सर ये उसका मैं अपलाइन हूँ। हाँ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ऐसा करके उसको समझाया हूँ, है ना। ठीक है सर, वेरी गुड। ऐसी कोई बात नहीं। ललित जी भी बहुत टॉप लीडर और अच्छा काम करने वाले बंदे हैं, है ना। वेरी गुड सर।
हाँ, इसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं सर, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कोई इशू नहीं है सर, मैंने बताया ना उसका आंसर उनको दिया, बहुत अच्छे से आंसर दिया कि सर कंपनी का इसका ऐसा कोई भी एंटरटेनमेंट करने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। ठीक है, जो डिसीजन है वो हम लोगों की खुद की जो कोर टीम हमने बनाई हुई है, राइट सर। और कोर टीम में कौन आ रहा है, जो अपने 10 डायरेक्ट करके आ रहा है सर। जी सर। ठीक है ना सर। तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग भैया नहीं करेंगे उसको प्रमोट जी, ना तो उसका प्रमोट करेंगे और ना ही जो ये $10 पे लेगा, राइट, उसका हम प्रमोशन भी नहीं करने वाले। जी जी जी, ठीक है सर। ठीक सर, ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच सर, मिस्टर साहू सर। ओके, थैंक यू। एंड मिस्टर संतोष सर, प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, देन उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को बाइंड अप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा सेशन हो चुका है आज का। ओके, मिस्टर संतोष सर, वेलकम सर। मोहित सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मैं संतोष जी बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ, हमने हमारी बात भी हो गई थी फोन पे, आपने मुझे ऐड भी किया ग्रुप में। वेरी गुड सर। हाँ हाँ, और अभी जो डिस्कस चल रही थी ना वो $10 इंस्टॉलमेंट का, हाँ, तो वो आपने जो कोर टीम में डिसीजन लिया है वो तो अच्छा है वो डिसीजन, क्योंकि कंपनी के वेबसाइट के ऊपर तो पूरा इंस्टॉलमेंट का प्लान है और वो मीटिंग में डिस्कस करने की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन कोर टीम में एक अच्छा निर्णय लिया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा वन टाइम परचेस कर ले, है ना। बिल्कुल सर। वन टाइम परचेस करने का बेनिफिट ये होता है कि लोग इंस्टॉलमेंट क्या है नहीं भरते, और इंस्टॉलमेंट अगर एक भी अगर टाइम अगर गलत हो गया तो वो उस गरीब आदमी का नुकसान है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल संतोष जी। एक्चुअली में जो चीज मैं कहना चाह रहा था, राइट, यही है तो कंपनी का पास पूरा प्रॉफिट चला जाएगा और उस बंदे को कुछ नहीं मिलेगा, है ना। exactly. तो ये सारी इंस्टॉलमेंट की दिक्कतें मेरे भी ग्रुप में आ रही थी, तो मैंने स्ट्रिक्टली उन लोगों को बताया है जिन्होंने भी अभी मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया था, तो उनको स्ट्रिक्टली बताया कि भाई टाइम पे टाइम एक दिन पहले भरो, कम से कम एक दिन पहले तो याद रखे भरो, तो क्या होगा वो आपका शेयर जो है 500 के अलावा जो मिला है, गिफ्ट के अलावा जो मिला है वो नहीं मिलेगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल जो लॉजिक था उसका लॉजिक सिर्फ यही था, क्योंकि मैंने जो 90 डेज में एनालिसिस किया तो एक्चुअल में $10 का, आप यहाँ पर एक चीज समझना कि $10 पे जब हम किसी को पिच करते हैं ना, तो वो सामने से कहता है कि सर आप ही लगा दो, बराबर है, राइट। क्योंकि हम लोगों ने MLM किया है और MLM कितना गंदा हो चुका था सर, हम लोगों को सबको पता है, राइट सर। और सर दूसरी बात क्या है सर, वो भूल जाता है। यस सर, और भूल जाता है, बता रहा हूँ मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ, 99.99% ऐसे लोग जिनकी इंस्टॉलमेंट उनका अपलाइन अगर पे कर रहा है, 99.99% लोग ऐसे लोग इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते सर। आप उनके पीछे कितना भी पड़े रहना, नहीं पे करते। सामने वाले की होती है सर, वो तो भूल जाता है। और देखो हम कहाँ याद रख सकते हैं किसी का इंस्टॉलमेंट कितने तारीख को है, और वो बाद में बोलता है कि आपने हमको याद करके नहीं दिया, आपने विजन दिया तो हमको याद करने, तुम्हारा काम है ना याद करके देना। यानी सब खाना खिलाना भी उसको हमको ही करना पड़ता है सीनियर लोगों को। और दूसरी चीज क्या है, जब उसका $10 का लॉस होता है तो वो बाद में बोलता है मेरा लॉस हो गया है आपकी वजह से, वो कभी अपने को रिलेट नहीं करता है। सवाल $10 का है लेकिन रिलेशन टूटता है। एग्जैक्टली सर। तो क्यों ना हम $100 का वन टाइम परचेस करवा ले। $100 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आज तक दुनिया में हमें किसी ने शेयर्स खरीदी करने के लिए किसी ने मौका नहीं दिया। अमेजॉन का शेयर्स आया, हमको किसी ने मौका नहीं दिया। फेसबुक का शेयर्स आया, हमको किसी ने मौका नहीं दिया। किसी ने हमको शेयर्स खरीदने का मौका दिया ही नहीं ना सर, आम आदमी को। राइट सर। तो अगर हमको किसी ने मौका दिया होता तो ये लोग गरीब थोड़ी रहते, कुछ ना कुछ 2000-4000 की खरीदी लेते थे ना। तो कोई कंपनी अगर कोई आदमी गरीब है बोल के अगर इंस्टॉलमेंट से ले रहा है तो वेबसाइट की ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये टाइम का पालन करे। जिन्होंने भी इंस्टॉलमेंट लिया है वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से लिया है, तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से भी उन्होंने अपना टाइम का पालन करना चाहिए।
देखो नहीं करते तो इससे बेहतर है संतोष जी हाँ संतोष जी, हम लोग फिर कभी करेंगे इसको डिस्कशन और अच्छे से, राइट, नेक्स्ट सेशन के अंदर, राइट। अगर ये बेसिकली इशू लग रहा है लोगों को तो डेफिनेटली हम लोग कल के सेशन में ही हम लोग एक बार इस पे 10 मिनट लेंगे टीम का, राइट, और इसको हम लोग ब्रीफ करेंगे कि एक्चुअल में ये डिसीजन क्यों लिया गया। ओके सर। नहीं ये तो कोर मीटिंग का है ना, ये कोई कंपनी का थोड़ी है, जिसको चलाना है चला सकता है ना। एग्जैक्टली सर, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ तो आज के लिए धन्यवाद, राइट, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को अंत तक अटेंड करने के लिए, राइट।